Everyone fine? Okay. बढ़िया सर। या चलिए, लास्ट वीक हम लोगों ने क्या सीखा, राइट? सितंबर बैच है, so we will have to cover many things in English, right? November बैच हिंदी, September बैच English, so I will try to convey the messages in English और हम दोनों चीज यूज करेंगे। आप लोगों को जो कंफर्टेबल हो आप वो भाषा में बात कर सकते हो, राइट? So before you continue, आप कंटिन्यू करो। उससे पहले today's meeting we will have to end sharp at 8:30. Yes, yes. So right. Whenever participants का chance आएगा, we will allot a limited time today. Yeah. Thank you. Yeah, correct, Chintan bhai. So let me begin today's meeting with our last week work. Last to last week, you started learning on some corrections. Got it? We were trying to search where we are going to buy, where we should buy any share. You search some growing industries, you search some good companies, you search their behavior. You were trying to see which are the best companies to invest for 2030. Now you have the list of best sector and you have the list of best companies, right or wrong? So you know which are the good companies. You know what are their intrinsic value. You know what are their current result. Considering charts, considering technical analysis, we will try to interpret where to buy or what to do. So let me show you something more. Okay, hope you are able to see everyone. Whiteboard, right? Okay. So let me just off the video so that there may be no problem for this internet. And now I will go to this topic. I would like to know from everyone that if the share is coming here with IPO and the share is in continuous rally, what do I think? Growing stock. Yeah. Should we expect that this company's sales would be growing? Yes, sir. Okay. Should we expect that this company's profit would be growing? Yes, definitely. Okay. So after the IPO, if your share is rallying, that would be a simple thing that yes, this company's sales and profits are growing. So now pre-IPO, if you got the data of pre-IPO, that this company is already growing their sales and profit consistently, what can we interpret? Yes, after the inception of IPO, the share will boom like a rocket. Yeah, definitely. Right? So we can interpret that this is a good company and it will give us good result. Right? Now, if there is some problem in quality, now see, there is a huge difference in growth and quality. Hai na? Company might be growing every year, but that company is not having good margin. That company is having some debt. So what will happen? If that company belong to growing industry, then sales are still continuously going to grow. But where will be the problem? In profits or interest coverage ratio, something else. Correct. So what might happen? There may be time after 1 year, 6 months, 2 years, that raw material price would be increasing. There would be some problems in rate of interest. कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने ही वाले हैं. Life is not so simple. Whenever this problem would be coming, your share would be coming to correction mode. So what will happen? Now your share would be correcting. So whenever your share is not making lifetime high for some time, it is not making higher high, higher low, there would be some reason. इन्वेस्टर के माइंड में क्या डर है? क्यों ये शेयर हाई नहीं लगा रहा है? Yes, let me take it. Okay. Profit, margin कम है और profit. Correct. Muted.
So let me ask this question to Arun Kumar. Yes, sir. Yeah, Arun ji. Arun Kumar ji, you said that price were increasing because we know that some companies' sales and profits are increasing and are going to increase. So investors are bullish and prices are increasing. Yes, sir. Now, in what case we are going to see this correction? कौन सा case हो सकता है? Either stagnant profits. Okay, first thing should be profit, because profit आप लोगों ने सीखा बिहेवियर में, प्रॉफिट आपके कंट्रोल में नहीं है, है ना? Yes, sir. प्रॉफिट को कोई और चला रहा है, रॉ मटेरियल चला रहा है, राइट? सो दैट माइट बी प्रॉब्लम इन प्रॉफिट. और अगर ये फॉल थोड़ा भयंकर है, ये ऐसे करेक्ट हो रहा है और ज्यादा Profits are तो क्या weakening. प्रॉब्लम हो सकता है? Profits weaken हो रहे मार्जिन हैं. कम हो रहे हैं, मार्जिन इफेक्ट हो रही है. वो तो हमने मान लिया, प्रॉफिट कम मतलब मार्जिन कम. तो उनकी डेट कवरेज या उनका जो भी रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो बढ़ रही है. नहीं, वो उससे तो प्रॉफिट कम हो गए, तो प्रॉफिट पे तो मान लिया, चलो प्रॉफिट कम हो गए तो ये शेयर थोड़ा करेक्शन में आ गया. लेकिन स्टीप फॉल, जबरदस्त फॉल कब आता है? सेल्स डाउन हो गए. किसने बताया सेल्स वाली बात? राकेश जुएल. राकेश भाई, वंडरफुल राकेश भाई. सेल्स एक ऐसी चीज है जो बड़ा कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल सेल्स के हाथों में है, प्रॉफिट से ज्यादा. क्योंकि इन्वेस्टर अभी क्या है, तैयार हो गए हैं. Investor now know that profit are not in my control, but yes, sales should not fall. Sales तभी fall होते हैं जब बड़ी गड़बड़ी होती है, इकोनॉमी में प्रॉब्लम हो जाते हैं, इंडिया कंज्यूम नहीं करेगा तो बहुत सी कंपनी नहीं, बहुत सी इंडस्ट्रीज के सेल्स कम होंगे. कोरोना में क्या डर था? प्रॉफिट का डर नहीं था. ये जो कोरोना में क्या डर था? सेल्स, रेगुलर सेल ही खत्म हो गई थी. हाँ, तो सेल्स अगर डाउन होते हैं तो स्टीप फॉल आता है. खाली प्रॉफिट डाउन होते तो क्या होता है? नॉर्मल करेक्शन मोड आता है. राइट? क्लियर अरुण जी? यस सर. ओके, एक मिनट मैं सब रब कर देता हूं. तो एक चीज मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुई है, ये शेयर रैली किया क्योंकि धंधा, प्रॉफिट बोथ आर ग्रोइंग. दिस शेयर इज इन दिस टाइप ऑफ करेक्शन मोड or this type of correction mode. Who is telling you? Sales or profit fall. Failure in either sales or failure in either profit is going to give different type of fall. बराबर है इतनी चीज? Yes sir. Now there are some very good companies like let me ask this question to चिराग भाई. कैसे हो चिराग भाई? अनम्यूट कर सकते हो? बढ़िया सर, आवाज आ रही है? बस आप तो छा गए ऑल ओवर इंडिया में. मस्त एकदम रहा आपका प्रेजेंटेशन. थैंक यू सर, थैंक यू. बहुत अच्छा था प्रेजेंटेशन. चिराग भाई मुझे बताओ, बायोटेक्नोलॉजी में कौन राजा है? विच इज बेस्ट कंपनी? पक्का? अरे देखने की जरूरत ही नहीं है. नहीं है? ओके. तो यानी बायोकॉन, अगर बायोटेक्नोलॉजी में कुछ प्रॉब्लम आता है तो बायोकॉन का शेयर ऐसे गिरेगा करेक्शन मोड में, अगर उनके प्रॉफिट डाउन होंगे तो. बट इन द सेम सेक्टर, इफ यू आर ट्रैकिंग सम अदर कंपनी हु आर हैविंग लेसर मार्जिन, उनका शेयर कैसे गिरेगा? वो जो सेकंड वाली है ना, उस तरह से. और अगर उससे भी थोड़ा प्रॉब्लम रहा तो पूरा नीचे भी आ सकता है. मतलब एक ऐसे चल रहा है चिराग भाई, एक ऐसे चल रहा है, बराबर ना? हाँ सर. बायोकॉन ऐसा इस प्रकार से तभी चलेगा जब धंधे में प्रॉब्लम आएगा, तब तक बायोकॉन इज बेस्ट. ये ऐसे चलेगा. हाउसिंग फाइनेंस में एचडीएफसी जनरली कैसे चलेगा? ऐसे की ऐसे, ऊपर की तरह सर. ऊपर की तरह से. वो तो इससे और जो छोटी कंपनियां हैं, LIC, कैनफिन होम फाइनेंस, वो सब कैसे चलेंगे प्रॉब्लम में? वो नीचे वाले ऐसे चलेंगे. बैंक में सबसे बढ़िया कौन है चिराग भाई? HDFC, कोटक, SBI, तीनों मतलब ऐसे चलेंगे. अगर खराबी आती है HDFC बैंक को, प्रॉफिट कम होते हैं, तो IDFC, इंडसइंड, यस, वो कैसे चलेंगे? ये सब नीचे की तरह आ जाएंगे. इतना सिंपल है शेयर बाजार.
एशियन पेंट कैसे चलेगा खराब समय में? वो भी ऊपर की ऐसे। तरह से। वही सेक्टर में अगर शालीमार पेंट है तो वो कैसे चलेगा? नीचे की तरह। इट्स वेरी सिंपल। राइट। जस्ट अ मिनट, कोई जगह से इको आ रहा है, मेरे को देखने दो। ओके, क्लियर। सो होप you are able to understand this much simple thing. ये तो समझ में आ गया, ये जो बातें अभी हमने रखी आपके सामने, राइट? नाउ एक मिनट, ओके, राइट। इफ योर स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी इज फॉलिंग लाइक दिस, ऐसा भी तो होता है। देखो मंदी में एचडीएफसी बैंक ऐसे गिरा था, कोरोना में ऐसे गिरा था, राइट? तो बाकी कंपनियों का क्या होगा? दूसरी जो वो 80% में आती थी उनका, वो इसे भी नीचे पे जाएंगे सीधे। तो एक चीज क्लियर हो गई है कि आउट परफॉर्मर कंपनीज आर गोइंग टू आउट परफॉर्म एवरी टाइम। ओके सर, हाँ सर, राइट? लीडर्स आर लीडर्स, लीडर्स आर लीडर्स एंड लैगर्स आर लेगर्स। लैगर्स। सो दिस इज वेरी सिंपल थिंग। लेकिन कभी कभी सिंपल चीजें सिंपल वे में समझ में नहीं आती है, लोगों को कॉम्प्लिकेटेड बहुत अच्छा लगता है, राइट? ओके, सो और एक प्रश्न है चिराग भाई आप ही के लिए। आपने बोला एचडीएफसी बैंक उसमें बढ़िया है, बायोकॉन अच्छी है, these all were some of the good companies from some sectors. या अब मेरे को बताओ, ये कंपनियां जब चल रही होती है, ये ऐसे चल रही होती है रैली में, हमें बाय कब करना है? हमें सर अगर इतनी रैली है तो जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा ट्रेडर सिमोस आता है उस टाइम पे हम एसआईपी कर सकते हैं। जैसे 2-3 मंथ का 4 मंथ का करेक्शन है उस टाइम पे, और अगर थोड़ा बड़ा वाला मटेरियल लेना है तो हमें मौके का पूरा मंथली उसको रिव्यू करते करते वेट करना पड़ेगा, ऐसे कभी भी नहीं घुस जाएंगे। बराबर है। तो आपके हिसाब से जब भी ये रैली चल रही होती है, अंदाजे से कितने कितने समय में ऐसे लेने के मौके मिलते हैं? वो सर कंपनियों पे डिपेंड रहता है कि जो कंपनी मतलब उसका नेचर सेम ही रहता है। जैसे बीच में मैंने सुना था, क्योंकि उस टाइम तो मैंने मार्केट का स्टडी नहीं किया था, कि रिलायंस कितने सालों से नहीं चला था। बराबर है। वैसे अभी आपका वीडियो में आया था कि डी-मार्ट भी बीच में 1-1.5 साल नहीं चला था, राइट? और कभी कभी कोई शेयर में हो जाता है, एचडीएफसी हो गया 3 या 4 मंथ में उसने फिर से ब्रेकआउट दे दिया, उसने 3-4 मंथ ही मौके दिए। कोई कोई शेयर बहुत ज्यादा टाइम पे देता है। ओके, कौन सा बताया आपने? एचडीएफसी? हाँ, एचडीएफसी। और सर कोई कोई शेयर तो मैंने देखे हैं, नाम नहीं याद मुझे। हाँ, उसका तो दूसरे मंथ में ब्रेकआउट, और मतलब 50 मेमा पे भी नहीं आए थे, इतनी मंदी। बराबर है, 50 मेमा भी नहीं आता है। लेकिन ऐसा कोई शेयर नहीं है जो आराम नहीं करता है, हर एक शेयर में करेक्शन आता है। ये सबका फादर है निफ्टी। कितनी सारी बार आपको मौके मिले? हाँ, मिलते हैं। निफ्टी भी तो ये बहुत लंबा मौका था, 12,400 के आसपास ही था सर। ये 12,400। ये मौका आपको 34 मंथ का मिला, तो कौन कहता है मैं बाय नहीं कर सका? बराबर है। 3 साल। या यहाँ पे मौका आपको मिला था अगेन लंबा, ऑलमोस्ट 24 महीने, 2 साल। यहाँ मौका मिला था आपको 74 मंथ, 6 साल। सो एवरी टाइम डोंट से कोई शेयर अपॉर्चुनिटी नहीं देते, हर एक शेयर अपॉर्चुनिटी देता है। अभी आपने एचडीएफसी बैंक कहा, राइट? ये एचडीएफसी बैंक क्या मौके नहीं दिए आपको? वो 3-4 ये मौका जो था, ये कितने महीने का था? 17 महीने का। चिराग भाई, आपने बोला 5 महीने में वापस बाइंग आ गया। मतलब कोरोना के बाद 5 मंथ में सर मैंने वो देखा था। हाँ, देखो कोरोना के लेवल को 5 मंथ में पार कर दिया। चलो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये एचडीएफसी बैंक, ये पूरा ये एकदम रेंज लंबी, ये जो है ये करेक्शन मोड है। यहाँ पर भी बीच में मौका है, अगेन 12-13 महीना। 12-13 जाने दो इसको। ये कितना समय नहीं चला? यहाँ पर भी ज्यादा ही हो गया, 15 महीना।
तो ये मत बोलो 5-5 महीने के आएंगे, 5 महीना करेक्शन कुछ भी नहीं है। ओके 5 महीने तो पचने को होते हैं कि मैं टूट रहा हूं, लोग मानते नहीं है कि ये टूट रहा है। ओके जब लोग हथियार डाल देते हैं कि अब मेरे को नहीं रखना है HDFC बैंक, एक बीबी की बर्थडे गई, मैंने उसको गिफ्ट नहीं दिया, HDFC बैंक रखा था, बीबी की दूसरी बर्थडे आ गई, अब मेरे को याद आता है कि मैंने वो बेच के कि उसको गिफ्ट नहीं दिया, राइट। 12 महीने हो गए, लेकिन ये तो ऐसा ही चलेगा। ये लोगों के हथियार डलवा देता है कि अब मैं जिंदगी में कभी नहीं चलूंगा, और 12-14 महीने बाद वापस HDFC रैली। अब ये कितनी बार देखो, यहाँ पे भी नहीं चला, वहां पर अगेन आप गिनो। ये सब गिनने का या ये आपको स्टडी देता है, बिहेवियर पता चलता है। ये नहीं गिनेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि शेयर 1.5 साल नहीं चलते। चिराग भाई, अभी ये शेयर HDFC बैंक जिसने लाख के 2 करोड़ कर दिए, वो कितनी सारी बार 1.5 साल नहीं चला, तो बाकी शेयर का क्या हुआ होगा? वहां पर भी 16 मंथ या सब 16 मंथ। यहाँ एक ऐड कर देने का चिराग भाई, 16 दिखे ना तो 17 मानने का हर बार, ये एक नियम है, बराबर ना। देखो यहाँ मैं कर रहा हूँ, ये तो बड़ा होगा सर, बड़ा बहुत बड़ा होगा, 32 महीना 2.5 साल के आसपास। या तो एक चीज हमेशा एक अटल सत्य है, हर एक शेयर करेक्शन में आएगा। अंधे होके शेयर के पीछे नहीं दौड़े। हर 3 साल में आपको बड़ा 1.5 साल का करेक्शन पीरियड देखने को मिलेगा। ये रूल याद रखो, राइट। इसको डायरी में लिख दो। हर 3 साल में 1.5 साल का एक करेक्शन मिलता है, जब हम अच्छे भाव पे ले सकते, बहुत अच्छे नहीं लेकिन अच्छे। है सर, हाँ, इम्पेशेंट लोगों वाला जो पीवीआर में लगा था वही, राइट। लेकिन एकदम मस्त मौके है ना चिराग भाई, 8 साल में एक बार मिलता है। कितने साल में? 8-10 साल में एक बार। 8-10 साल में एक आध बार तगड़ा मौका मिलता है। तो ये रूल डायरी में लिखेंगे ना तो हम कभी इम्पेशेंट नहीं होंगे। सर इसके रिगार्डिंग मुझे अभी क्वेश्चन आया है। हाँ जी। जैसे बढ़िया मौका, मतलब ये HDFC माने तो उनका हमने 20 साल का हिस्ट्री देखा, तो शायद एक ही बार 100 मेमा पे आया होगा, या फिर 2-4 बार 50 मेमा पे आया होगा। तो इसके लिए 50 मेमा इज द ग्रेट चांस ना सर, कि जब 50 मेमा पे आता है तो बढ़िया चांस हो गया। और कोई वॉरेन बफेट साहब, चिराग भाई इस चीज पे बहुत अच्छा कहते हैं कि जब भी बाजार में मंदी आए, आ जाओ, फिर वापस वैकेशन पे चले जाओ 8-10 साल के लंबे। अभी नॉर्मल इन्वेस्टर ये कर नहीं पाता है, क्योंकि उसको एक्साइटमेंट चाहिए, उसको रोज बाजार देखना है। नहीं तो एकदम सिंपल है। ये 8-10 साल का मौका आता है, धीमे धीमे आप जब एक्सपीरियंस होंगे ना, कुछ समय बाद आप भी पेशेंट आप में भी आ जाएगा। आपको भी यही लगेगा रोज रोज क्या देखने का यार, मौका मिलेगा तो चिराग भाई एकदम एक्टिव हो जाएंगे। तब वो पूरा माल लेंगे, लेकिन वो रोज एक्टिव नहीं रहेंगे, बराबर। तो ये चीज धीमे धीमे आदत पड़ेगी, लेकिन ऐसे मौके 8-10 साल में एक बार मिलेंगे। कुछ मौके आपको 3-1 साल में मिलने वाले, इसके लिए प्रिपेयर रह जाओ, राइट। ये जो आपने बोला 50 मेमा वाला, मेरा क्वेश्चन क्या था सर, जैसे इसके HDFC बैंक के लिए 50 मेमा इज अ गुड लेवल, कि वो कभी कभी आता है, राइट। कोई कोई शेयर तो ऐसे हो गए कि जो 100 मेमा पे, मतलब अपनी सेक्टर के लीडर हो गए, बट वो काफी बार 100 मेमा पे सपोर्ट लेते हैं, 2-3 साल में एक बार, 2-3 साल में एक बार। तो उसके लिए गुड लेवल वो 100 मेमा हो गया ना सर? हाँ हो गया, सही बात है। लेकिन हम जो लोग सबसे ज्यादा टाइम, वो हमारा गुड लेवल हो गया। चिराग भाई आपके लिए सही में बोलूं तो मेमा कोई काम का नहीं है आपके लिए। क्यों, आपका एज कितना है? 27 सर, 27। 27। ओके चिराग भी आपकी एज पे तो मैं उठ गया था, मेरे पास पैसा ही नहीं बचा था, इतना मैंने नुकसान कर दिया था यहाँ पे बाजार में, बराबर। तो मेरा तो कोई बचत था नहीं उस समय। लेकिन आपका एज के हिसाब से मैं आपको बताऊं, आप और बहुत समय तक हर महीने कमाने वाले हो, राइट। तो आपने क्या करना चाहिए, जब जब ऐसा मौका मिलता है, दिख रहा है ये करेक्शन पीरियड 12-12 महीने वाले, तब तब SIP चालू कर देने की, फिर बाजू में हट जाने का। ओके, कोई मेमा क्या करने का, की जरूरत नहीं है। हाँ देखो मेमा किसके काम का है पता है? देखने दो आपके ग्रुप में, 1 मिनट,
ललित भाई एज में ललित भाई यार, ललित भाई यंग है अभी, ललित भाई रिटायर नहीं हुए, उनको यंग रिटायर मत। नहीं हुआ, 55 56 के आसपास है शायद सर। हाँ तो अभी 5 साल कमाने वाले हैं, तो अभी भी तरुण उनको सर मेमा था। काम लगेगा, ये करेक्शन मोड काम लगेगा, मेमा नहीं लगेगा काम, है ना। तो ये आप रिटायर वाला के लिए ही है सर, मेमा वाला। ये हाँ देखो, तरुण सर तरुण के भाई लिए आपके था। ग्रुप में है। कौन? ओके ओके, तरुण सर हो गए। तरुण सर रिटायर्ड है, तो तरुण सर को ये एसआईपी वाला फंडा काम नहीं लगेगा, वो रिटायर्ड है, उनको मौके देखने पड़ेंगे, और मिला मौका लगाओ छक्का वाली स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी, ओके सर। राइट। तो मैं तरुण जी को बोलूं आप एसआईपी करो हर महीना, अरे क्या एसआईपी है, अभी थोड़ी ना मैं कमाने वाला हूँ हर महीना, तो मेरे पास तो एक फंड है, जो फंड से मेरे को पैसा बनाना पड़ेगा, तो उनको मौके देख के निवेश करना पड़ेगा, उनके लिए मेमा काम का है, राइट। ठीक है सर, ठीक है। बराबर, तो एक चीज हमारे लिए क्लियर तो है। सर ये हो गया ना कि अगर कोई एक्स्ट्रा बोनस बोनस वगैरह आता है और उस टाइम पे मौका है तो भी लगा दो इस तरह से। हाँ, जैसे बोनस आए ना, तुरंत शेयर बाजार नहीं ढूंढने का, जैसे बोनस आया सीधा डाल दो उसको एफडी में, इसमें बराबर। सर फिर मौका देखो टेप फंड कब में ना। मौका मिलता है, या ओके सर, ओके। फिर मौका देख के उसको शेयर बाजार में डाइवर्ट करो पैसा। ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसा आएगा तब मैं शेयर बाजार ढूंढूंगा, नहीं, मेरे पास पूरी जिंदगी है। देखो शेयर, जैसे एक कहावत है, जो लीडर्स होते हैं ना, लीडर्स, आपने देखा ये नेता लोग बहुत जीते, इनकी उम्र लंबी होती है क्योंकि इनको रिस्क लेने की आदत हो गई है, तो इनका हार्ट भी प्रिपेयर है। ऐसे शेयर बाजार वाले लोग भी बहुत लंबा जीते हैं, तो सबकी लाइफ बहुत लंबी है। तो ये मत मानना कि अभी तो मेरे पास बहुत कम समय है, क्या करूं, बहुत तगड़ी नहीं, मेरे हम पास तो सबके बहुत पास टाइम है लाइफ सर, है, आराम से टाइम है। या और ये टाइम है, ये पता चला यहाँ आने के बाद, पहले नहीं पता था। देखो, वॉरेन बुफे साहब अभी भी अपनी कंपनी का कोई नॉमिन नहीं कर रहे, ये एज में 90 में वो कहते हैं कि मेरा कोई नॉमिन नहीं, अभी भी मैं ही कंपनी चलाऊंगा। सो उनको पता है, वो ये साल में तो इंडिया में निवेश करना चाहते हैं कि भाई 15 साल में मेरे को अच्छे पैसे मिलेंगे, वो ये सोचते हैं, और हम लोग ये सोचते हैं 50 साल पे मेरी उम्र निकल गई। सर मेरा एक डाउट था, या जैसे कोई सर चार्ट थोड़ा बड़ा कीजिए ना सर, जैसे वो प्लस दबा के तो पता चले, कोई भी चलेगा, ये वाला भी बढ़िया रहेगा। ओके, जैसे सर प्रैक्टिकल थिंग बताता हूँ मैं, राइट, कि हमें एसआईपी स्टार्ट करनी है सर, वो तो वो हम कैसे पता करें ऐसा, जैसे यहाँ पर तो हमें पता चल गया कि 12 मंथ तक तो ये नहीं चलेगा, बराबर। जैसे चलो बता देता हूँ मैं आपको सर, जस्ट टू इन्फॉर्म यू 7:30 हुआ है। या थैंक यू चिंतन भाई। ओके, चिराग भाई, यहाँ पे ये शेयर करेक्शन मोड में है कि रैली में है, मुझे वो जवाब दो। यहाँ पे उसने हायर हाई लगाया, तो उसका मतलब तो करेक्ट रैली में है अभी। अब ये शेयर हायर हर हाई महीने है और हायर हाई जब और हायर क्लोज भी है सर अभी तो, जब और तक हायर लो ये भी है। जब तक ये लोअर लो नहीं बनाता है, तब तक आप इसे करेक्शन नहीं कह सकते हो, ये रैली मोड में है, तो इसको अभी आप नहीं ले सकते। देखो, हम लोगों ने इसको ये पूरे समय पे इकट्ठा किया, अब हम मजे करेंगे, ले लिया है अब चलने दो, देखना नहीं है। जो वॉरेन बुफे बोलते हैं ना, माल ले लिया अब आराम करो, वैकेशन पे चले जाओ। तो सर मंथली कैंडल में जब भी लास्ट मंथ का लो टूट के नीचे आ जाए, लो क्लोज दे दे, तभी देखना है, तब शुरू करो एसआईपी, मतलब ये करेक्शन में आ चुका है। ओके। मेरे को बताओ, पूरा ये जो हिस्ट्री दिख रहा है ना, सबसे बड़े वॉल्यूम आपको कहाँ मिले? लास्ट में जब बहुत ज्यादा आया तभी, एक और इससे इधर पहले भी जब करेक्शन आया जबरदस्त बड़े फॉल आए, तब क्यों इतना बड़ा वॉल्यूम आया? क्योंकि बड़ा माल यहाँ पे खरीदा गया था। ओके सर, राइट, अगेन ये कोरोना में क्यों इतने वॉल्यूम दिखे? यहाँ पे माल इकट्ठा हुआ है। दिस इज द प्लेस वेयर ह्यूज बाइंग हैज बीन डन बाय बिग इन्वेस्टर्स, ने वो बड़े बड़े लोग ने किया। यस, राइट। तो इन एनी शेयर बी प्रिपेयर्ड, रैली में दूर रहो, करेक्शन मोड होता है, करे आपका, स्टार्ट करो नाउ। लेट मी आस्क क्वेश्चन टू अदर पीपल। ललित भाई के पास में आ जाता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू चिराग भाई। ललित भाई, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। हाँ जी सर। यस ललित भाई, ये मेरा था HDFC बैंक,
पुराना में डेटा हाँ जी। निकाला है, राइट। हाँ हाँ शेयर चला, ये लंबा आराम किया था उसने 2000 से 2003 तक का, राइट। हाँ जी। ये जमाने में कोई बैंक्स नहीं थी, दूसरी प्राइवेट बैंक नई नई आई थी, लोग विश्वास नहीं करते थे, बोलते थे बंद हो जाएगी, बराबर। हाँ जी। लंबे करेक्शन के बाद जबरदस्त रैली आनी चालू हो गई और आपका HDFC बैंक ये 20 रुपए से 200 गया, डन। डन। रैली के बाद ये जबरदस्त 2007 का फॉल आया और ललित भाई के मन में प्रश्न आया कि मेरे को कोई बैंक में निवेश करना है। ललित भाई बोलते हैं कि HDFC बैंक अच्छी लग रही है, चलो लेट अस इन्वेस्ट इन HDFC बैंक। ओके, तो ललित भाई को सबसे पहला अलर्ट किधर हो जाना चाहिए, कहां पे आप खरीदोगे जब ये फुल रैली चल रही है तब? यस ललित भाई। 2008 के बाद कंसोलिडेशन रेस्ट मोड में होगा ना। हाँ, ये देखो टूट रहा है आपके सामने, तो ये टूटने के समय मुझे एक्टिव होना है, बराबर है। मैं मानता हूं मैं ललित भाई हूं और मैं जॉब करता हूं, आप GSFC में हो ना? हाँ जी सर। ओके, मैं GSFC में जॉब करता हूं और अभी मेरे को पता चला बाजार टूट रहा है, तो मैं एक्टिव हो गया अभी अचानक, बाजार में माल लेना है मेरे को। HDFC बैंक में तो पैसा डालना ही है ये फॉल में, तो मैं कौन से लेवल को ध्यान रखूंगा कि एक बार इधर आने दे, यहाँ पे तो मैं थोड़ा माल ले लूंगा, वो कौन सी जगह होगी? 50 में 50 में ये, बराबर है। हाँ जैसा मैंने बताया, बहुत से लोग ये मानते हैं कि अच्छे शेयर बहुत नहीं टूटते हैं, 1-2 महीने, अभी चिराग भाई कह रहे थे 4-5 महीने में चल जाते हैं। जो लोग ये मानेंगे करेक्शन इतना छोटा होता है, वो ज्यादा फंसेंगे। हमेशा तैयार रहने का। नॉर्मल करेक्शन कितना होता है, मैंने कितना बताया अभी, अपने बहुत से HDFC बैंक में हमने डेटा देखे, कितना करेक्ट होता है कोई भी 1.5 साल तो भी 23%। इतना तो तैयारी रखने की, रखने जब भी का। करेक्शन आएगा 1 साल, एक बर्थडे से दूसरी बर्थडे आने वाली है अपनी, उतना करेक्शन चलता है, राइट। तो बहुत हाँ जी। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं होती है कभी भी, बराबर है। हाँ जी। ये शेयर आपका टूटा, मैं कहानी बता रहा हूं HDFC बैंक की, ये टूटा 3 महीना, चला कितना महीना? 2 महीना। 2 महीने में आप लोग करेक्शन में सीखे कि ये पूरा रिट्रेस नहीं हुआ, ये यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है, ये पूरा रिट्रेस नहीं हुआ और पहले ही इसने वापस लो लगा दिया, टूट गया, बराबर। A B, तो C किधर जाना है? धड़ाम। जितना A है उतना C है, बराबर। इतना प्रिपेयर रहना है कि जल्दबाजी ना करे, शांति से A B C में अपने को लेना है। 50 में माँ पे ललित भाई ने लिया, क्या है देखने दो 50 में माँ, 98, तो आपने 98 पे लिया और ये आ गया 138, मतलब कितना मिल रहा है आपको 2 महीने में? 30-40%। 40%, राइट। तो दोस्त बोलेंगे ललित वो बेच यार, शेयर बाजार का कोई भरोसा नहीं, बराबर कि नहीं? शेयर बाजार चोर बाजार, ऑपरेटर चलाते हैं। ललित भाई ने बोला नहीं मैं नहीं बेचने वाला हूं, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, और दूसरे ही महीने धड़ाम वापस 98। फिर वो दोस्त वापस आपको हैरान करने आएंगे ना, बोला था ललित तेरे को, मैं तो 20 साल से शेयर बाजार करता हूं, तूने नहीं बेचा, फंसा। और फंसे तो ठीक है, ये 98 से नीचे और कितना आया उस समय? 84, 77। अब ये कहने में आसान है ललित भाई, पर हाँ जी। सोचो, आपने शेयर लिया और आपकी आदत है रोज मनी कंट्रोल देखने की। आपने बोला पीयूष भाई HDFC बैंक तो मैंने लिया इतनी नीचे, तो भी 25% डाउन है, अब ये क्या होगा, मैं बेच दूं, क्योंकि कोई ठिकाना नहीं लग रहा है इकोनॉमी का। लोगों को ज्यादातर लाल जब देखते हैं ना मनी कंट्रोल पे, उनको डर लगने लगता है और वो सब अच्छे शेयर बेच के भाग जाते हैं। ये बड़ा वॉल्यूम इसीलिए नीचे आता है। डायरी में लिख देने का, हमेशा सबसे बड़ा बाइंग हमेशा लोअर लेवल पे आएगा। क्या लिखने का ललित भाई? हाँ, सबसे बड़ा बाय लोअर लेवल पे आ जाएगा।
सबसे बड़े बाइंग हमेशा लोअर लेवल पे आएंगे। जब हम हथियार डाल देंगे तब वो बड़े खिलाड़ी आएंगे और बड़ा माल ले जाएंगे। आप बोलोगे, मैंने ये डायलॉग सुने ललित भाई, थोड़ा बाजार सेटल होने तो मैं बाद में लूंगा। एक बाजार में कहावत है, फॉलिंग नाइफ्स में नहीं पड़ने का। ये सब कहावत को बाजू में रखो। मैंने आज तक बाजार को सेटल नहीं होने दिया, मैंने टूटते बाजार में हमेशा लिया है। इसीलिए जब बाजार चलता है ना, तब हम शांति से आराम कर रहे होते हैं। जब मार्केट में ब्लड बाथ होगा ना, तब ही लेने का। हाँ, जब सब घबराते। अब आपने 77 पे घबरा के माल बेच दिया। देखो ये कौन से लेवल पे आ रहा था, 100 मेमा पे नहीं आया, राइट, लेकिन ये 50 मेमा से 100 मेमा में कहीं कैच हो गया। तो ये पूरी रेंज याद रखने की कि ये बाइंग रेंज है। आपने लिया, आपके लेने के बाद भी वो आधा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। अब आप दो चीज सीखे, ज्यादा महीना रुकेगा तो अपॉर्चुनिटी अच्छी होगी। हाँ, कोई चिंता कभी नहीं करने की, क्योंकि आप बेस्ट कंपनी में हो, राइट। देखो सबसे बड़ा वॉल्यूम इधर दिख रहा है आपको, इधर है ना, लोअर लेवल से आया 77 वाले। अब ये आपने मेमा देखा, आपने रिट्रेसमेंट सीखा ललित भाई। हाँ, मैं यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे आता हूँ। देखो कुछ भी थियरी दुनिया भर की है, सब थियरी पे नहीं जाने का, एकदम शेयर बाजार को सिंपल रखने का, फोकस थियरी करने का सर। या सी मैं यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता हूँ, यहाँ गया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लिया, क्या करूं, लोएस्ट लो से कहां तक जाऊं, हाईएस्ट हाईएस्ट हाई, राइट। ये कितना करेक्ट हुआ, ये है आपका गोल्डन लेवल 61%। 61 ये 61% आने से पहले घूम गया कंप्लीट। आपका 61% था 71। ये FII की डायरी में लिखा होता है लेवल, दैट लेट दिस शेयर, ये लीडर है अपने सेक्टर का, इसको आने दो। गोल्डन रेशियो 61 को बोलते हैं ना, या बड़ा बाइंग करेंगे। तो आपका ध्यान है, उनका ध्यान है, म्यूचुअल फंड का ध्यान है, इसीलिए नीचे के लेवल पे ही बड़े बाइंग आते हैं। डन। हो सकता है ये आपके लेवल से पहले घूम जाए, ये घूम गया ना, तो परफेक्ट लेवल का कभी वेट नहीं करने का, कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। आपने बाय किया इसको, फिर ये किधर आया, आपका पहला टारगेट क्या होता है, पुराना हाई 182, राइट। 72 182 आने में कितना समय लगा, 6-7 महीना, बराबर है। हाँ जी। लेकिन ये 6-7 महीने में ललित भाई को रोज लगेगा, कल बाजार गिर गया तो, काले बाजार टूटेगी तो करीस। मैंने शेयर लिया हुआ, ये मुश्किल से कमाया है, ये 138 पे पिछली बार नहीं बेचा था, वापस टूट गया, इस बार भी नहीं बेचा और टूटा तो मैं क्या करूंगा, है कि नहीं। वही दोस्त आपको बोलने आता है ललित बेच, फंसेगा नहीं तो, राइट। कभी किसी की बात नहीं सुनने की, अपनी खुद की बात सुनने की। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आप इसलिए बाय कर रहे हो क्योंकि आपको 10 गुना चाहिए, 10 गुना। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है ये 10-20% में। ये 182 आया, आपको रेंज ने सपोर्ट दिया। अब आपने मेमा देखा, रिट्रेसमेंट देखा, ये सब एक ही स्टोरी होती है। दुनिया में इतनी थियरी है ना, सब कोई भी थियरी ऐसी होगी ललित भाई जिसमें वो बोलेंगे जब तेजी आती है तब खरीदो ना, वो मंदी में ही बोलेगा ना, मंदी में। हाँ, तो कितना सिंपल है, मंदी में लेने का है, तेजी में साइडवेज हो जाने का है। साइड हो जाने, फिर आप मेमा डालो, रिट्रेसमेंट करो, कुछ भी करो, पर मंदी में लो यार माल, बराबर की नहीं, राइट ललित भाई। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच ललित भाई। मुझे और थोड़ा आगे बढ़ने दो, और मैं अभी बात करूंगा साबिर जी से। यस साबिर खान जी, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। साबिर जी, आपके पास मेरे ख्याल से दो इंस्ट्रूमेंट है, वो एक को अनम्यूट करना पड़ेगा। एक ही है सर, एक ही है। पक्का एक ही ऐसा हो रहा है? पक्का एक ही है सर। सर आप कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस से सुन रहे हैं समीर भाई? नहीं सर, मैं लैपटॉप पे हूँ। अच्छा, एको आ रहा है आपका? ऐसा तो नहीं मोबाइल रैक?
मोबाइल पे नहीं है वो साबिर जी? नहीं मैं लैपटॉप पे हूँ। कोई अपने हेडफोन लगाया है? नहीं बिल्कुल नहीं। ओके मैं एक बार आपको म्यूट करता हूँ, बराबर, फिर वापस से आप अनम्यूट करके प्रयास कीजिए। ओके। देखो अब मैंने साबिर जी को म्यूट किया, अब इको नहीं आ रहा है? आ रहा है चिंतन भाई? नहीं आ रहा है सर, उनके एंड से आ रहा था। या साबिर जी एक काम कीजिए ना, साबिर जी आप एक बार एग्जिट होके वापस एंटर हो जाइए, हो सकता है इससे सॉल्यूशन आ जाए। बराबर है? ओके सर। चलिए तब तक मैं और थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। दोबारा आ गया सर इको। हाँ, साबिर जी से बात चल रही थी इसलिए। ओके, सो नेक्स्ट लेट अस टॉक विद मिस्टर प्रबल। यस प्रबल जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। या मिस्टर प्रबल, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो? हाँ सर, बोलिए सर। यस सर। गुड इवनिंग। तो गुड इवनिंग अभी सर। हमारा ललित जी से बात चल रहा था। सो Yes, ललित sir. भाई हैव bought this share in this whole range of 98 to 70. Now this share Yeah. has approached toward 182. He is not selling his share, right? रोज डर लगेगा उनको, और फिर ये शेयर टूटा 2 महीना टूटा ना यहाँ पे प्रबल जी। हाँ सर। तो प्रबल जी 2 महीने में कितने दिन आते हैं? ट्रेडिंग डेज तो अराउंड 50, 45, 50. 40 to 44, right? So you have not sold your share at 182 and your share is not moving above 182 and in fact it has fallen till 150. तो वापस आपका वही फियर वाला फॉर्मूला चालू हो गया। मान लो आपने बेच दिया तो वेल्थ नहीं बनेगी, वो मैं आज से कह देता हूँ कोई भी कंपनी में, क्योंकि होगा क्या, व्हाट हैपेंड नाउ, दिस शेयर हैज अप्रोच्ड टुवर्ड व्हिच रेंज? It has given a breakout. Breakout, correct sir. So why this share would have given the breakout here? Because its sales and profits are growing. It's a good company, so because of that. Yeah, see, breakout means either sales or profit have come to lifetime high, or by looking to some data we are estimating that price is going to come at lifetime high. Right. So this share again is in rally mode. Yes sir. Again what you thought, अरे यार मैं तो रह गया, ट्रेडर रिमोर्स, कैन यू सी दिस ट्रेडर रिमोर्स? हाँ सर। तेजी वाले फंसेंगे, उनको डर लगेगा, अरे बाप रे मरेंगे तो। हाँ। उनके दिमाग में एक पिक्चर होता है कि दिस शेयर हैज फॉलन फ्रॉम 182 टू 70, अगेन ये 182 टू 70 आ गया तो मेरा क्या होगा, राइट? राइट। डर के मारे वो लोग नहीं कर पाते। बट इफ यू आर looking to the fundamental, you know that their sales and profits are growing, no need to worry. Right. This share has rallied till 257. हाँ। बराबर। अब हाँ। ललित भाई ने 100 पे लिए, 250 हुआ, डबल से ज्यादा, ललित भाई को मजा हो गया है, बराबर। लेकिन ये जो समय वापस आया प्रबल जी, for whom this whole period is an opportunity? So those who have missed that rally ना, वो पहला वाला रैली जो मिस कर गए थे, मतलब जो हम लोगों ने जो बाय नहीं किए थे, so we can now buy in at 199 that range. Absolutely. So many people would be thinking कि कभी भी HDFC में मंदी नहीं आएगी, पर उनको पता नहीं हर शेयर में मंदी आती है, राइट? हाँ सर, हाँ सर। और जब इसमें मंदी आई, कितने समय नहीं चला ये? Yeah, 1.5 year almost. Almost 1.5 year. So Prabal ji, Lalit bhai should again add the share during this correction. Yes. Definitely. Now you would be thinking मैं क्यों 200 पे लूं, बराबर की नहीं? पास तो 98 के है, लेकिन हम सबकी थिंकिंग क्या है? We are waiting when HDFC would reach to 2 lakh crore profit. Right. So we are looking for opportunities, and you have accumulated during this SIP. Right.
There are traders who are always looking for breakout. वो लोग कभी भी ये करेक्शन में नहीं लेंगे. वो क्या बोलेंगे, ब्रेकआउट देने दो, बाद में ही लेने का. राइट. हम क्या करते हैं प्रबल जी, ब्रेकआउट नहीं चाहिए हमें. मुझे इतनी मजा आती है जितना लंबा शेयर नहीं चले, क्योंकि मैं माल ले सकूं. अब ये चल गया, फिर अपना मैं उदास हो जाता हूँ. अरे यार तू चल गया, अब मैं कब खरीदूंगा तेरे को. सर क्यों पर ब्रेकआउट के बाद क्यों नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो तो वापस आके वो ब्रेकआउट की जगह पे अटकेगा ना. इट्स नॉट दैट इट विल गो डाउन टू मच. तो मैं ये ब्रेकआउट में क्यों नहीं खरीदूंगा. क्योंकि ब्रेकआउट इसने दिया, अब ये रैली मोड में आ गया है. कोई भी चीज को रैली मोड में लेंगे तो ये हायर प्राइस पे ही आता जाएगा. हमें क्या करना है, whenever we are buying during falling mode, तो सस्ते भाव पे आएंगे. जब HDFC Bank is in rally mode, प्रबल जी, at same time you will find some other companies would be in correction mode. So why not buy those other companies which are right now in correction mode? क्योंकि वो correction mode में है, उसमें भी breakout आएगा कल. Right? 250 से 350 फिर correction mode. हर बार आपको मौका मिलता जा रहा है. लेकिन आपके पुराने भाव नहीं आते हैं. राइट. एग्जैक्टली. यू नो वेरी वेल, आपको मौके मिलते ही है. तो हर बार जब जब शेयर नहीं चले तब तब माल इकट्ठा करे. डन. नाउ दिस इज बेस्ट बैंक एंड दैट इज HDFC. अब हम बाकी शेयर के चार्ट देखेंगे तो पागल हो जाएंगे, क्योंकि वो तो कितने गिरेंगे. हमें शेयर बाजार से नफरत हो जाएगी प्रबल जी अगर हम दूसरी कंपनी के शेयर देखेंगे तो. सो अकॉर्डिंग टू यू, इफ आई वांट टू क्रिएट वेल्थ, मुझे कोई सिंपल स्ट्रेटेजी बता सकते हो कि मैं क्या करूं आने वाले 15 साल के लिए. बाय ड्यूरिंग फॉल. वेरी सिंगल लाइन बट यूजफुल लाइन, बाय ड्यूरिंग फॉल. Right, and avoid buying during rallies. Right, Prabal ji? Now, yes, sir. whether you are tracking NEMA, whether you are tracking retracement, whether you are tracking any hi-fi thing, during any theory, we are going to buy during fall, and we will avoid market during rallies. Right, Prabal ji? Yes, sir. This thing is clear. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you very much, Prabal ji. Thank you, sir. Thank you. Let me move to next participant, to Sir? Mr. Yeah. सर बाय ड्यूरिंग फॉल इन ग्रोइंग इंडस्ट्री, ये कंप्लीट हो जाएगा. हम कभी भी ग्रोइंग के अलावा तो बाय करने नहीं वाले. तो बाय ड्यूरिंग फॉल इन ग्रोइंग इंडस्ट्री इज अ परफेक्ट स्टेटमेंट, बट ऑलवेज see that we should buy only in growing industry. तो Never मतलब ever buy any company which are हमारा in वीडियो decaying industry. कहाँ जाएगा हमें नहीं पता, लेकिन स्टेटमेंट तो पूरी हो जाए. सही बात है, सही बात है. करेक्ट करेक्ट. तो चलिए हम लोग साबिर खान जी से बात करते हैं. यस साबिर जी, यू कैन अनम्यूट अगेन. गुड इवनिंग सर. यस गुड इवनिंग. चलिए अभी आपका एकदम परफेक्ट आवाज सुनाई दे रहा है. साबिर जी, ये हमने HDFC बैंक का उदाहरण देखा. राइट. यहाँ पे now I am showing you one more company. This is DMart. सेम स्टोरी. IPO के बाद जबरदस्त रैली, मतलब धंधा बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है. इधर क्या था सर, ये रेंज बाउंड था. रेंज बाउंड था, प्रॉफिट. या इधर फिर से रेंज बाउंड था सर. अब कोई पूछेगा पीयूष भाई मेरे को डीमार्ट लेना है, मैं रह गया, तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है फिर, क्योंकि ये लेने के टाइम पे लिए क्यों नहीं यार तुमने, कितने बढ़िया बढ़िया मौके दिए. राइट. ऐसा मत बोलो कभी भी कि मैं रह गया, मुझे मौके नहीं मिले. सर तब तक हम लोगों को ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं था सर. चलो ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं था, लेकिन साबिर जी आपने ही रुकने बोला था सर. सही बात है. चलो
अभी क्या करने का साबिर जी? अभी अभी चलो तो- हमको नहीं पता है क्या करे, लेकिन अब हमने जान लिया कि फॉल मिलेंगे। अब डीमार्ट में क्या करेंगे बताओ? जैसे ही फॉल आता है सर, इन कर जाना है इस पे। करेक्ट। अभी ये कौन से मोड में है? सर अभी तो रैली है, लेकिन इस मंथ में फिर इन्वर्टेड हैमर बनाया है। वो मत देखो, अभी तो महीना खत्म नहीं हुआ है, नहीं, खत्म नहीं हुआ है सर, है ना? अभी नहीं है, ये तो ब्रेकआउट दे चुका है, आप देखते हैं आगे। करेक्ट। रूल नंबर 1 करेक्शन का क्या है? कब आप बोलोगे करेक्शन चालू? जब तक लोअर लो नहीं लगाता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। जब तक लोअर हाई नहीं लगता है, we will say that this share is in rally mode. रैली मोड में उसको हैरान नहीं करने का, उसको बोलने का कोई बात नहीं, तेरे को चलना उतना चल, मैं तब तक गोवा घूम के आता हूं। अगर आप रोज इसको देखोगे तो रोज बेच दोगे। मैंने देखा है लोगों को ऐसा नहीं है कि उन्होंने वेल्थ इसलिए नहीं बनाया कि उनको अच्छे शेयर नहीं पता थे, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे शेयर लिए थे, सर पर अच्छे जब भी उन्होंने सब बेच के निकल जाते हैं सर, यही चीज। हाँ साबिर जी, जब भी वो मनी कंट्रोल खोलते हैं ना, एक बटन दबा देते हैं, सेल 25 शेयर, सेल 25 शेयर करके सब खाली कर देते हैं। वो तो छोड़ो, सेल पोजीशन में आ जाते हैं बाद में, फ्यूचर में शेयर सेल करके भी बैठते हैं। यस सर। राइट। तो ये सब स्ट्रेटेजी से दूर रहे, शांति वाला काम करे बिल्कुल। कोई हमारे जो चेहरा है ना साबिर जी, चेहरा अपना, इसमें जो ये कपाल वाला भाग है ना, अपर पार्ट ऑफ अवर फेस, उसमें Forehead. झुर्रियां नहीं आनी चाहिए। वो Yes, कब sir. आती है? जब चिंता में, बिल्कुल जब हम ओवर थिंक करते हैं, है ना, क्या करूं क्या करूं। अरे सिंपल है, गोवा घूमो, अभी रैली चल रही है, कुछ मत देखो। राइट। बिल्कुल और बिल्कुल। दूसरा, मंदी में ये मत पूछो कि अरे वापस क्या करूं क्या करूं। अरे ऐसा नहीं है, अच्छी कंपनियां हैं इंडिया में, उठाओ अभी हाँ, इसको धीमे धीमे करके। पहले से ही है, अपने पास तो लिस्ट पहले से ही है, बस हाँ, लग जाएंगे फिर खरीदने के लिए। ये लिस्ट चेंज ही नहीं होगा साबिर जी। 10 साल पहले एशियन पेंट, आज एशियन पेंट, बराबर। मैं बिल्कुल उस समय लोगों को कहता था कि जो लोग 2020 में सीखेंगे वो भी यही सब शेयर लेने वाले हैं। देखो आज आप सब लोग वही शेयर ले रहे हो। हाँ सर। 2030 में जो लोग आएंगे उनकी भी कंपनियां चेंज नहीं होगी, आधे से ज्यादा कंपनी सेम होगी, पर कुछ इमर्जिंग इंडस्ट्री से और कंपनियां आएगी। जैसे हाँ, पिछले दशक में जुबिलेंट आई, बराबर ना, वैसे कई और मस्त इमर्जिंग कंपनियां आएगी, वहां पे भी ध्यान देने का, बराबर है। यस सर। तो डीमार्ट को भी चलने देते, राइट। अभी चलने, अभी दूर रहना है सर इससे। ओके। मेरे पास एक फोन आया था आज, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने वंडरला लिए हुए, राइट। यस सर। मेरे को पूछ रहे थे पूरा बाजार चला, वंडरला नहीं चला, क्या करूं, बेच दूं? बिल्कुल नहीं सर, ये तो अभी कलेक्ट करते रहना है सर इसमें। ये हमारी रेंज, राइट। सबसे पहला मैंने साबिर जी उनसे ये कहा कि उम्मीद मत रखो अभी कि ये चलेगा, हम गलत उम्मीद रखेंगे तो डिमोटिवेट होंगे। यस सर, यस सर। बराबर है। कब क्यों चलेगा उम्मीद नहीं मुझे रखनी चाहिए? मेरे पास रहना चाहिए ये। या पर उम्मीद क्यों नहीं रखे साबिर जी कि ये चलना चाहिए, ये 400 तुरंत आ जाएगा, ऐसी उम्मीद क्यों नहीं रखनी चाहिए? उसको ही पता है कि अभी बिजनेस बिल्कुल इनका सेल्स डाउन है, प्रॉफिट तो डाउन ही रहेगा। राइट। तो मतलब उम्मीद नहीं रखूं, पर ये समय पे अगर मैं इकट्ठा करूंगा तो मुझे अच्छे भाव मिल रहे हैं सर अभी। अगर ये नहीं चली तो और कौन सी कंपनी ये सेक्टर में चलेगी? बिल्कुल सर। ये HDFC बैंक है अपने सेक्टर का, राइट। ओके। तो यही सलाह मैंने भी उनको दी, अभी देखते हो क्या करते हैं, बराबर ना। पर ये मंदी में माल इकट्ठा करते जाएंगे, टारगेट रखने का 1000 इकट्ठा करो। वोल्टास मैंने आज ही भाव देखा उसका, मुझे पता ही नहीं था ये 1000 आ गया। देखो ये 1000, जस्ट अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे 50 बीमा पे कि चलो इसको लेते हैं, कितने समय से नहीं चल रहा था, लोग पूछ रहे थे इसको कितना लंबा समय। मेरे को तो अभी भी ऐसा ही था, ये 450 ही चल रहा है। यस सर। 35 महीना नहीं चला, आप लोगों ने SIP किया, अब क्या करने का ये टाइम पे? बस कुछ नहीं करना सर, कुछ नहीं करना, वैकेशन में निकल जाना है। वैकेशन में निकल जाओ, अब ये रैली जबरदस्त करने वाला है, राइट। अब
4 साल जिसको याद नहीं आया कि मुझे वोल्टास लेना चाहिए था, अब वो याद करेंगे तो भी उनको फायदा नहीं है, बराबर। उनको एक करेक्शन मोड की वेट करनी पड़ेगी कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कितने समय में करेक्शन मोड आता है साबिर जी? हर 3 साल में बोले ना सर, 1-1.5 साल का मौका। या तो हर 3 साल में आता है, तो चलो आपको भी करेक्शन मोड आएगा, और जब आएगा तो वापस 12 महीने नहीं चलेगा, बराबर बिल्कुल क्या? तो शांति बनाए रखे और शेयर देखे जो करेक्शन मोड में है। एक ये है चीटी हाँ के सर, ये तो प्रेस्टीज, पिछले हफ्ते ही अभी एसआईपी मोड पे है ये हमारे या। करेक्ट। तो ये है ये रिलायंस। वोल्टास मोड पे है। अभी वोल्टास देखा था ना, लंबे समय नहीं चल रहा था, हाँ सर, वो तो हमारा ये डिस्कशन होता था ये नहीं चलेगा कभी भी। लोगों को डर लगता था ये जिंदगी में कभी नहीं चलेगा पीयूष भाई। अभी चला है, अभी अचानक इसके अच्छे समाचार आने चालू हो जाएंगे, बराबर है। हाँ तो बराबर। इसमें क्या किया जाए? एसआईपी की जाए। एसआईपी Done? सर। Okay. So thank you very much, Sabir ji. ओके And let me go towards next person. उससे पहले अरुण भाई की कोई क्वेरी है? कहिए अरुण भाई, आप क्या कहना चाहते थे? सर, एक तो जो हम फीबो लगाते हैं बिल्कुल एक्सट्रीम, जहां से शुरू हुआ वहां से लगाते हैं। या बराबर है। एक जो मैंने मतलब आज तक पहले से सीखा हुआ था, जो इमीडिएट उसकी रैली जहां से शुरू हुई है वहां से था, मतलब इसमें डिफरेंस क्यों है यहां वो से मैं, हाँ, वो समझना चाहता हूँ। बराबर है। देखो आपने जो समझा है कि इमीडिएट रैली यहां से शुरू हुई, तो यहां से यहाँ का 61% ढूंढो, बराबर की नहीं? यस सर। अरुण भाई आप नहीं, मैं भी यही सीखा था, ठीक सर। पर अनुभव ने समझा दिया कि वो सब शॉर्ट टर्म वालों ने किताबें लिखी है जिनको रोज कमाना है, ना वो कमाए हैं ना जब हमें कमाने देंगे। ठीक है, क्योंकि राइट, जैसे जैसे नीचे से हम ऊपर जाते जाएंगे उसकी फॉल की परसेंटेज, मतलब जो ग्रोइंग इंडस्ट्री है उसमें तो कम होती जाएगी। नहीं, आपको हमेशा ये मौका मिलेगा। मैं बता देता हूँ अभी आपको, यहाँ पे आपने 61% का रखा होता तो देखो स्टॉप लॉस आ गया होता है कि नहीं, नीचे आ गया। यस सर। इसलिए हमेशा प्रिपेयर रहो, शेयर ऐसे चलेंगे। आपने करेक्शन मोड सीखा ना, डब्ल्यू टाइप का करेक्शन है ये, यस सर। ए बी सी, सी। राइट। हो सकता Yes. है अभी यहां से ये चले और एक नया ब्रेकआउट हाँ, दे ये दे, एक्स वेव चल रही है, ए बी सी एक्स ये वेव। एक्स या अब यहां से चलेगा कि नहीं वो कौन डिसाइड करेगा अरुण भाई? सेल्स और प्रॉफिट्स इसका। सेल्स और प्रॉफिट। नहीं चला तो अरुण भाई के लिए लॉटरी, और कितना साल तक आपको वेट करना पड़ेगा? इतना। सेम सेम उसकी वेव, मतलब एबीसी दोबारा, सेम 2 एबीसी दोबारा साल ये वेव। नहीं चलेगा तो अच्छा है, मैं और इकट्ठा कर पाऊंगा, ठीक सर। बराबर। अब जो आपने रिट्रेसमेंट का पूछा उसको मैं क्लियर कर देता हूं। मैं अभी रिट्रेसमेंट इसका ड्रॉ करता हूं यहां से। ये है जीरो लाइफ लेवल टाइम से, लो, ये है जीरो लाइफ लेवल टाइम से। हाई। मुझे यस सर। बताइए अभी भी वो कौन से करेक्शन पे आया? 38। रिसेंट अभी 23% रिट्रेसमेंट के अंदर चल रहा है। राइट, लेकिन ये तो अभी चल रहा है, 50 तक आ ये गया था। 50 तक। अंदाजित 38% तो पहले ही फॉल में आ गया था, कोरोना से पहले आया था। यस सर। तो 38% एक नॉर्मल फॉल है जो आप हर अच्छी कंपनी में देखोगे, ठीक सर। बराबर है। ये एकदम इसको नॉर्मल समझो, 38% करेक्शन। बहुत ठीक। लोग बोलते हैं जब शेयर 5% टूटे लेना चालू करो। अरे 5% तो कुछ भी नहीं है। यस सर, वो तो हमें कुछ भी नहीं बना। एक्टिव तब होने का जब कम से कम 23% टूटे, तब हम पहली बार आंखों को यूं करेंगे, चलो यार लेने का टाइम आ गया है। ठीक सर। धीमे धीमे माल लेना चालू करेंगे। 38 इज नॉर्मल, राइट। ठीक सर। ठीक। ये 40 तक भी टूटा, पर ये समय पे घबराने का नहीं, ये पूरी रेंज आपके लिए बाइंग जोन है। डन। 50 मैमा एंड 100 मैमा के इन या बिटवीन। यस। अब ये जो टीटीके है, ये ए बना फॉल, ये Yes, बी sir. में 100% रिकवरी कर दी उसने, यस सर। इसीलिए सी में नीचे से कैच हो गया ठीक सेम सर। लेवल से, यस सर। राइट। अगर ये पहले घूम जाता तो हम क्या समझते? गुड, मतलब कंपनी उसमें ब्रेकआउट जल्दी ले लेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं ये 100% रिट्रेस अच्छा। नहीं होता। बी वेव शॉर्टन देन ए वेव। या
ये अच्छा, फिर तो इतना नीचे ही आ जाता चलता सर। हाँ, नीचे आ जाता फिर तो ये इधर तक टूटता, यस सर। बराबर ना, ए छोटा बी वापस लंबा सी, ए जितना सी। हाँ, फिर तो करेक्शन ज्यादा आ जाती। हाँ, पर ये करेक्शन क्यों नहीं आई? जितनी Because- खराबी होनी चाहिए उतनी नहीं है। इट्स सिंपल, यस राइट? सर। कुछ भी हो, हमें बाय करना है करेक्शन मोड में। ठीक Done? सर, ठीक सर। सेम मैं आपका रिट्रेसमेंट यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, कर दिया। यस सर। ये यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, लोएस्ट लो हाई कितना करेक्ट हुआ था? 38%। तो शेयर की आदत इतनी तो होती है। अभी एचडीएफसी बैंक हमने किया ना, आप Yes. प्रैक्टिस करना है एचडीएफसी बैंक कितना हर बार रिट्रेस होता है, ठीक सर। राइट? ये सब चीजें जितना इससे खेलोगे ना, जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे उतनी मजा आएगी। रिलायंस इंडस्ट्री अब 23% रिट्रेस हुआ था, हाँ, बराबर है, तो आज ही मैंने लिया सर। बढ़िया, अच्छा काम किया, बराबर ना, क्योंकि 25,000 करोड़ ऐड हो जाएंगे अभी फ्यूचर रिटेल के, भाई राइट? सर उसी कारण भी अब तो ये पूरे रिटेल में भी आ जाएगा। या और धंधा घटता है वो सबसे बड़ी निशानी है खराबी की, और धंधा बढ़ता है वो किसकी सबसे अच्छी निशानी है? ग्रोथ की। ग्रोथ की, बराबर। ओके, ठीक सर। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, और लेट मी मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। SMR, SMR किसने लिखा हुआ है? मेरे को पता नहीं है। आप सितंबर बैच के स्टूडेंट हो सर? या SMR? Okay, I am not able to find you, recognize you. सुरेश भाई है सर। सुरेश भाई, ओके ओके ओके, सुरेश भाई सितंबर बैच आप? लो, मैं ही भूल गया सुरेश भाई अभी तो। मेरे को सुरेश भाई ध्यान नहीं है सितंबर बैच के, अगर हो तो हम लोग, एक मिनट। हाँ सुरेश भाई, ओके, यस सुरेश भाई, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, राइट? इफ यू कैन, नो प्रॉब्लम सुरेश भाई। इट्स, हाँ पीयूष भाई। हाँ, एक मिनट। हाँ, कैसे हो सुरेश भाई? फाइन एकदम, फर्स्ट क्लास पे पीयूष भाई। ओके सुरेश भाई, कौन सी बैच में हो? सितंबर में ही हूँ सर, लेकिन मैं कंप्लीटली सब अटेंड नहीं किए थे और होमवर्क भी ऑलमोस्ट अच्छा। नहीं। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई दूसरी प्रायोरिटी होगी अभी, ऐसा है? हाँ, थोड़ा काम में बिजी था सर। नो नो प्रॉब्लम, पहली प्रायोरिटी हमेशा हमें अपने काम को तो देनी ही है, बराबर ना, क्योंकि वो पहली प्रायोरिटी है, राइट? यस। ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो कुछ हम यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं समझ में आ रही है सुरेश भाई? जी जी जी, आ रही है सर, आ रही है। ओके, तो एक क्वेश्चन करूँ आपको? हाँ जी। ओके, हाउसिंग फाइनेंस की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? HDFC होनी चाहिए। वंडरफुल, HDFC। HDFC अभी कौन से मोड में एंटर हो चुका है? ब्रेकआउट दिया है, रैली मोड में है सर। राइट, उसने हमें मौका दिया बाय करने का, काफी मौके दिए। राइट? 50-100 मिमा के बीच में कैच हुआ और अब ये चल चुका है, राइट? सेल्स प्रॉफिट अच्छे आए ऐसी उम्मीद रख रहे हैं हम लोग, तो कंपनी ये शेयर जबरदस्त चलेगा। अब हमें वापस कब लेना चाहिए अगर कोई लोग रह गए हैं, नहीं लिया है HDFC तो? ट्रेडर रिमोर्स आएगा तभी ले सकते हैं, ब्रेकआउट के बाद। या एब्सोल्युटली, ट्रेडर रिमोर्स के आसपास ये करेक्ट होता है, ट्रेडर रिमोर्स आता है, देन वी कैन बाय दिस शेयर। रैली में पीछे पीछे दौड़ना नहीं चाहिए, बराबर ना सर? राइट। ओके, तो HDFC सेक्टर का किंग है, तो इसी पे ध्यान दे। इसी सेक्टर की सेकंड बेस्ट कंपनी ये है, ये सेकंड बेस्ट कंपनी है, इसने भी कभी भी लॉस नहीं किया सुरेश भाई, जब से ये पैदा हुई है। दिस इज अ कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। पर HDFC इधर चल रहा है, ब्रेकआउट दे दिया, और LIC इधर चल रहा है, ह्यूज डिफरेंस पता चला आपको? राइट। इसीलिए हम पहले से क्या कहते हैं, किधर निवेश करने का? लीडर के साथ, लीडर में।
देखो आप LIC में नुकसान नहीं करोगे, ये भी पैसा कमा के देगी, पर हम लोग नुकसान नहीं करने के लिए नहीं कर रहे शेयर बाजार, हमें वेल्थ क्रिएट करनी है, बराबर। हमारा घोड़ा सबसे आगे दौड़ना चाहिए, सही, राइट। अब LIC एग्जैक्ट कहां से घुमा है, मैं यहां रिट्रेसमेंट ड्रॉ करता हूं। किसने कैच किया इसको? 78%, 80%, तो 200 जो MA। 61% नहीं, ये 61 और 80% के बीच में ट्रैप हुआ है, राइट। तो कोई किसी के पास भी शेयर है वो इधर बेचेगा तो चलेगा? नहीं बेचना चाहिए। या आपके पास है, उम्मीद करो 793, 800 ये आने वाले 2-3 साल में पहुंचेगा, बराबर है। पर तब तक HDFC किधर पहुंच जाएगा? हाँ वो डबल हो जाएगा शायद। मल्टी ईयर रैली, ह्यूज रैली वहां पे आ चुकी होगी, राइट। तो इसी प्रकार से इंटरप्रेट करें, बहुत सिंपल है ये सारी चीजें, राइट सर? यस सर। ओके, सो सुरेश भाई थैंक यू वेरी मच। और कोई भी जगह पे तकलीफ होती है आप हमारी टीम को इन्फॉर्म कीजिएगा, बराबर है? यस सर। ओके, सो थैंक यू। लेट मी मूव टू मेहुल। यस मेहुल भाई, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यस मेहुल। यस सर। यस, कैसे हो मेहुल भाई? बस सर बढ़िया है सर, आप कैसे हो सर? एकदम एकदम फाइन, राइट। हाँ सर। हमने आज बाइंग लेवल ढूंढ रहे थे हम लोग कि चलो शेयर्स को बाय किया जाए, तो कोई भी शेयर हो हमें लेना कब चाहिए, रैली में कि फॉल में? फॉल में सर। फॉल में। तो जब विक्स टूट रहा था, जब LIC में फॉल था, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, हाँ सर। थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है या? अच्छा थोड़ा તમારી ઝુકાઈ રાખજો હન કાકા। हाँ सर। ओके, हम તમારી ઝુકાઈ રાખજો। मेहुल भाई मैंने आपको म्यूट कर दिया है, मैं आपको प्रश्न पूछ लेता हूं, फिर आप अनम्यूट करके जवाब दो ताकि डिस्टर्बेंस नहीं आए, क्योंकि आपके वहां से थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, राइट। तो अभी म्यूट रहो, मैं प्रश्न पूछ देता हूं, आप अनम्यूट होके जवाब दे दीजिएगा। डन। प्रश्न नंबर 1, लेना कब चाहिए, आपने बोल दिया फॉल में। प्रश्न नंबर 2, LIC भी टूट रहा था, HDFC भी टूट रहा था, और ये सेक्टर की सबसे अच्छी कंपनी इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस भी टूट रही थी। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस IPO के भाव पे आ गई, LIC 80% रिट्रेस हुई, HDFC यहां टूट रही थी, खाली कितना रिट्रेस हुई? 100 मीमा, राइट। पर जब टूट रही थी उस समय आपको क्या लेना था? यस मेहुल भाई। HDFC, LIC की इंडिया बुल? HDFC सर। HDFC नहीं, लेकिन आपको लगेगा इंडिया बुल तो बहुत टूटा है इसलिए वो ज्यादा चलेगा, HDFC तो टूटा नहीं है, ये तो हाथी है, ये कहां चलेगा? तो क्या होता, दिखा आपको यहाँ पे? हाँ सर। इसने ब्रेकआउट दे दिया, इंडिया बुल 2030 में ब्रेकआउट देगा, 10 साल बाद, राइट। हाँ सर। हाँ सर। हमेशा बेस्ट में रहो और अच्छी कंपनियों को करेक्शन मोड में लेने का प्रयास करो। डन। हाँ, लोअर चैनल पे इकट्ठा करने का ट्राई करना चाहिए सर। करेक्ट। तो जब ये टूट रहा था HDFC आपको कहाँ लेना था? आपने एक प्लानिंग तो किया होगा कि ये टूट रहा है, मैं इसको कहाँ लूं? आपके डायरी में आपने कौन सा लेवल लिखा हुआ होना चाहिए था? 50 मेमा सर। 50 मेमा। देखो ये ऐसा भयंकर टूट रहा था, कितना था 50 मेमा? 1783, मतलब 1800। 2500 वाला हाँ आपने सोचा 1800 पे तो मैं घर से निकलूंगा लेने को, आपने 1800 से लिया और ये 1400 आ गया, तो डर लगेगा कि नहीं लगेगा मेहुल भाई? हाँ सर, पहले डर लगता था, अब नहीं लगेगा सर। नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर HDFC 1400 पे नहीं टिका तो ये दूसरी कंपनियों का क्या होगा जो अभी से IPO भाव पे आ गई है? वो तो सब गायब हो इसीलिए जाएगी, सर
है ना? पहले कुछ पढ़ाई नहीं की थी तो कुछ पता नहीं चलता था कि ये कितना टूट सकता है। अभी राइट 90-80% सोच सकते हैं कि ये कहाँ तक आ सकता है सर। बराबर बराबर, बस यही चीज हमेशा याद रखने की, राइट? अच्छी यस चीजों सर। में बाइंग में रहो, टूटता है कोई कभी घबराओ नहीं, शांति बनाए रखो। अब ये चलने लगा है तो ये भी लोग सोचेंगे ये गिर गया तो, राइट? अब आपका क्या टारगेट होना चाहिए, आप क्या सोचोगे एचडीएफसी में मिनिमम कितना चलना चाहिए? यहाँ से सर मिनिमम सर 50-80% तो चलना चाहिए सर। 50% तो गरीब शेयर चलते हैं, गरीब डबल शेयर। सर डबल भी हो जाएगा, पर मार्केट की वैल्यूएशन के हिसाब से भी। मार्केट की वैल्यूएशन ये वो लंबी बात है, एकदम शॉर्ट में कम से कम डबल। हाँ यस सर। ऐसा बोलोगे डबल भी हो जाएगा, वो नहीं, कम से कम डबल भी हो जाएगा नहीं, ये तो 5 गुना होगा। आपको ये बोलना चाहिए तो 5 गुना भी हो जाएगा। हाँ सर। राइट? कॉन्फिडेंस रखो। मैंने ये नहीं किया था पहले, मैं हर बार ये सोचता था डबल भी हो जाएगा, मेरे डायलॉग चेंज हो गए, राइट? क्योंकि मैंने डबल होने से पहले बेच दिए। 50-80% बहुत होता था मेरे लिए। ये गलती आपसे ना हो, इसलिए आपको कह रहा हूं, पहला टारगेट क्या रखने का? डबल, मिनिमम डबल। मिनिमम डबल। डबल पे आप पहली बार मनी कंट्रोल खोलोगे और बोलोगे चलो आज 100 है, कितना बेचेंगे बोलो मेहुल भाई? 5% मैक्सिमम 10%। बराबर है, 5-10 भी ज्यादा है। डबल पे 1-2 बेचने का जरूर है, नहीं बेचोगे तो भी चिंता नहीं, क्योंकि डबल तो कोई थियरी नहीं है। हाँ बराबर, चलने दो, फुल बैटिंग करने दो, राइट? यस सर। पूरी दुनिया चिल्लाएगी, रोज चिल्लाएगी ये महंगा हो गया, ये हाई पी पे, उनको चिल्लाने दो। उनकी आंखों के सामने शेयर 5 गुना होगा और फिर वो लेने आएंगे। बराबर है? यस सर। यस सर। एकदम बाजार ऐसे ही चलता है, साइकोलॉजी से खेलता है बाजार सबकी। यस सर। ओके, सो थैंक यू वेरी मच मेहुल भाई, मैंने आपकी राय जान ली और आपके जो डायलॉग में जो कुछ चेंज करना था वो भी कर लिया। ये माइंड में कंसीव हो जाएगा, ये उम्मीद में रखता हूं मेहुल भाई। रखो। यस सर, 100% हो जाएगा सर। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू। तरुण भाई। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। पहले तरुण भाई के लिए ताली हो जाए सब लोग आपके ग्रुप में से। कल तरुण भाई ने अपना डेब्यू प्रेजेंटेशन किया, मजा आ गया एकदम। वंडरफुल वंडरफुल तरुण भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। इट वाज अ बिगिनिंग, एकदम पहली शुरुआत थी। और मुझे याद है तरुण भाई, जब मैंने पहली बार प्रेजेंटेशन दिया था तो मैंने तो मेरे दोस्तों के सामने दिया था, है ना? मेरे जो दोस्त थे, मैं बोला तुम बैठो यार, मैं तुमको समझाता हूँ। फिर सब दोस्त ने बोला यार पीयूष तू ऐसा बोलता है कि मेरे को पेंजोन खानी पड़ेगी सर। इतना फटाफट फटाफट बोला कि कुछ समझ में नहीं आया। तो मेरा प्रेजेंटेशन वर्स्ट था, लेकिन इम्प्रूव होते 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 पूरा प्रयास करता हूँ कि हर बार इम्प्रूवमेंट आए। देखो आप लोगों ने जो प्रेजेंटेशन दिया ना तरुण भाई, दैट वाज रियली वंडरफुल। मुझे कहना चाहिए मेरे सामने जो मैं था उससे बहुत बेहतर हो आप, राइट? सो थम्स अप टू यू सर। नहीं सर, ये तो सर आपका, आई मीन रियली ग्रेटफुल टू यू सर, आपने मौका दिया सर। आई मीन अभी मेरा तो अभी कोर्स चल ही रहा है सर, उसके बीच में आपने मौका दिया सर। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू सर। नहीं नहीं, ऐसा ग्रेटफुल मत कहिए, राइट? इट वाज अपॉर्चुनिटी टू अस आल्सो। हमें भी पता चलता है, हम लोग को कॉन्फिडेंस आता है जब आप लोगों को कॉन्फिडेंस में देखते हैं, है ना तरुण जी? आपको कौन सी चीज का डर था कल के प्रेजेंटेशन में? कोई फियर? सर मेरे को फ्रैंकली अगर पूछा जाए तो ये एक्सेल में मेरा हाथ तंग है सर। और ये कोर्स जब ज्वाइन किया था, मैं जिंदगी में पहली बार एक्सेल कर रहा था सर। अच्छा, और ये पूरा सर टीम लीडर सर अशोक जी और फिर जैद भाई, इन्होंने मेरे को काफी सपोर्ट दिया सर। और इस टाइम पे डाटा कलेक्शन और डाटा इंटरप्रिटेशन में मेरे को दिक्कत नहीं है सर। सिर्फ मेरे को था ये प्रेजेंटेशन बनाने में थोड़ा सा, तो मैं खुद सीखा हूँ सर, खुद कर रहा हूँ सर।
Right. And now I'm confident that I can do it. And अशोक भाई को यही बोला था मैंने कि क्या वो कह रहे थे कि मैं कर देता हूँ, लेकिन नहीं, आप मेरे को बता दो कैसे करना है, मैं खुद करूंगा सर। यस, यही करने का हमेशा हमें, देखो हमने कभी भी तरुण भाई ये नहीं सोचा कि हमें बेस्ट प्रेजेंटेशन करना है, नहीं करना है हमें बेस्ट प्रेजेंटेशन, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, ताकि कोई भी व्यक्ति जो सुन रहे हैं उनको ये ना लगे कि ये तो यार ये तो बहुत सी चीजें करनी पड़ी, बहुत मुश्किल है, बराबर ना, ऐसे सिंपल रहे कि कोई किसान सुने उसको भी लगे यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, बराबर। यहाँ पे तो आइंस्टाइन सर की एक कोट याद आता है कि अगर आप एक बच्चे को समझा सको कोई चीज, नई चीज, अगर आप वो समझ जाए तो यानी कि आप समझ गए अच्छी तरह से उस चीज को। एब्सोल्युटली तरुण भाई, बहुत सही बताया आपने। मैंने मेरे शुरुआत के प्रेजेंटेशंस में मेरे मदर को भी मैंने समझाया था, मैं प्रेजेंटेशन उनको भी देता था, क्योंकि उनको शेयर बाजार कुछ भी पता ही नहीं होता है, पर मैं ये प्रयास करता हूँ कि क्या उनको समझ में आता है, अगर उनको आता है तो लोग तो बहुत होशियार है बाहर, उनको तो समझ में आ जाएगा सर। एंड दूसरा हर एक को समझ में आए या दूसरा ये तरुण सर, बिफोर यू कंटिन्यू 1 मिनट, पीयूष भाई 8:15 हुआ है, जस्ट टू इन्फॉर्म यू। यस, हमारे पास 15 मिनट है और 15 मिनट अब हमारे पास इनफ है, राइट। हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें आज जो कवर करनी थी कर दी है ना चिंतन भाई, सो मे बी वी मे फिनिश बिफोर टाइम। या थैंक यू। यस तरुण भाई। सर थोड़ा सा दूसरा चैलेंजिंग जो था मेरे को, वो एस्टिमेट, फ्यूचर का एस्टिमेट लगाने में काफी वो थोड़ा सा चैलेंज लग रहा था, बराबर है, शॉर्ट टर्म का और लॉन्ग टर्म का, बट जब दोबारा से वीडियोस देखी और जैद भाई से दोबारा से फिर मैंने कंफर्म किया और उनसे बोला कि वेरीफाई करो मैंने किया है ठीक, तो वो उनके भी गाइडेंस से और सपोर्ट से सर अभी आई एम कॉन्फिडेंट अभी आई कैन डू इट सर। राइट, चलिए बढ़िया, वेरी गुड। अब आप ही का मैं शेयर लेता हूं, कल आपने कौन सी कंपनी समझाई थी? LTI सर। कौन सा? LTI सर। LTI, ये मैंने LTI लिखा है यहाँ पे, LTI, ओके, राइट। सेम थिंग गोइंग ऑन सर, रैली, आराम, बराबर ना। अब कोई कहे मैं LTI नहीं ले पाया तो सही बात है, यस, इतना लंबा समय तक नहीं चला सर। आराम मोड, राइट। देखो कोरोना का फॉल तो इधर आया, पर वो कोरोना से 2 साल पहले से नहीं चल रहा था, राइट। यस। तो तरुण भाई मुझे यहाँ पे बोर होके नहीं बेच देना चाहिए था। यस सर। राइट, मेरे दोस्त भी मुझे कहते होंगे पीयूष यार ये नहीं चल रहा है तो छोड़ना इसको, कुछ और खरीदते हैं जो चले, उनको तो रोज चलना चाहिए, ऐसा चाहिए। पर मेरे को ये पता है कि जिस दिन ये चलेगा सबकी बोलती बंद हो जाएगी। अगर मैं ये बेच के कुछ और लूं, वो थोड़ा चले, वो बेच के कुछ और लूं, तो मैं गोल गोल घूमता रहूंगा। मुझे क्या ये रैली मिलती 1400 से 4000 की? नहीं सर। तो सबसे बड़ी चीज क्या है? पेशेंस, है ना। हमें खुद को बहुत होशियार भी समझने की जरूरत नहीं है कि मैं तो बहुत स्मार्ट हो गया हूं, अब मैं ऐसे ही शेयर में काम करूं जो कल चलना चाहिए। नो, कोई भी व्यक्ति है उसे ये आराम मोड का सामना करना ही पड़ेगा। कोई कितना ही होशियार हो, उसको अपने जीवन में रात का भी सामना करना पड़ेगा, दिन का भी सामना करना पड़ेगा। राइट और रॉन्ग सर? एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। राइट, वो रात को सोचे नहीं मैं तो कभी रात नहीं देखूंगा, नो फ्रेंड। जिंदगी में ये दोनों चीजें आएगी। जब रैली आती है साइडवेज हो जाओ, वापस मौका मिले वापस बैटिंग चालू करो। कभी मेरे को बहुत बड़ी तकलीफ नहीं लगी शेयर बाजार में, ऐसा नहीं लगा कि बहुत पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है, राइट, ड्यू टू दिस होल थिंग। अब क्या करे यहाँ पे ललित भाई, अरे तरुण जी, अब मैं LTI में क्या करूं बताइए? अब तो सर ये रैली मोड में है अभी तो ऑलमोस्ट यहाँ से डबल हो चुका है सर। एंड अभी हमको इसने ट्रेडर रिमोर्स भी नहीं दिया है एंड सीधा ही मतलब और सीधा ही रैली मोड में निकल गया एक ही डायरेक्शन में सर। अभी तो वी हैव टू वेट फॉर करेक्शन, वी हैव टू वेट फॉर द करेक्शन सर। करेक्शन, करेक्ट।
तो 20 जैसे पहले भी करेक्शन के मौके मिले हैं, जब करेक्शन का मौका मिले तब एक्टिव हो जाओ, राइट? ये सर अभी तो ये लेकिन नए एक लेवल चीज क्लियर हो गई ललित भाई, अरे तरुण जी, कि सर। ये जो लेवल होते हैं ना सर ये आईपीओ के टाइम पे, जब जैसे यहाँ पे करेक्शन मोड पे जब लिए थे, यस सर, यस ये भी करेक्शन ही था, यस सर, तो यस सर, पुराने करेक्शन के लेवल नहीं आते हैं, नहीं आएंगे सर। आपका जो शेयर है एक नए ऑर्बिट में आ जाता है, फिर ये इसी ऑर्बिट में घूमता है और ऐसे ही आपके शेयर की कहानी चलती जाती है। ये नया अपग्रेड कर दिया सर इसने अपने लेवल को। या मैं यहाँ पे ये ड्रॉ करता हूं और अब आपको मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा कि सर। इसीलिए याद रखे, शेयर ऐसे चलेंगे फिर ऐसे करेंगे, हम कहाँ लेना चाहिए, इधर। अगर तरुण भाई लेंगे तो तरुण भाई को नीचे लेना पड़ेगा, अगर चिराग भाई लेंगे तो चिराग भाई पूरी एसआईपी कर सकते हैं, राइट? ओके सर। तरुण भाई अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा एसआईपी कर, हर महीने इकट्ठा कर, तो वो उन्हें भी कह सकते हैं पूरे समय में माल इकट्ठा करो, ये मत देखो तुम इधर ले रहे हो कि इधर ले रहे हो, पूरा जोन बाइंग जोन। फिर ये रैली आई, राइट, साइडवेज हो गए, अगेन क्या आएगा, देश। सर एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को समझने में थोड़ा गाइड करिए सर। यस। जब ये आराम मोड शुरू होता है तो वो कैसे इंडिकेशन मिलता है? जब पहला लो बनाया, फिर उसने हाई बनाया और पिछले हाई से ऊपर नहीं गया, तब हम समझे कि ये आराम मोड में आ रहा है सर? नहीं, पहला इंडिकेटर फॉल का है, जब ये बने तब समझ जाओ करेक्शन मोड चालू हो गया है। क्या बना ये? लोअर लो लोअर क्लोज, ये पहला इंडिकेटर है, मंथली कैंडल का, मंथली प्रीवियस यस, मंथली ओनली, राइट? मंथली लोअर लो लोअर क्लोज हो जाए, समझिए, अभी सोचो कि करेक्शन है। अब ये करेक्शन कितना डीप जाने वाला है ये भी आप जान सकते हो, देखो। यस सर। ये भी सिंपल ही था। यस सर, यस। एक मिनट, टेक्स्ट है ये मैं ड्रॉ करता हूं। या शेयर चला, एक बार टूटा, हमेशा पहली बार जब शेयर टूटता है तब ध्यान रखो कि ये कितना टूट रहा है, क्योंकि ये जितना टूट रहा है एक नॉर्मल फॉल है, आपको नहीं पता चलेगा इससे कि ये कितना टूटने वाला है, पर आपको बी से पता चलेगा कि ये ओवरऑल कितना टूटेगा। अगर बी में रिकवरी पूरी आई तो सी कितना, यहां तक। गॉट इट। अगर बी यहां तक ही हुआ, इसका मतलब देयर आर सम प्रॉब्लम, व्हाई यू आर नॉट रिकवरिंग टिल 100%। मतलब सीधा साधा ये 50 मेमा नहीं है, 100 मेमा तक आएगा, ये 61.8% रिट्रेस होगा। फिर भी अच्छी कंपनी है, फिर क्या आने चाहिए, रिकवरी। डन सर समझ। अगेन अ न्यू रैली, खत्म काम। ओके, सो लेट अस ऑल कीप मार्केट सिंपल एंड स्वीट, कोई चिंता की बात नहीं, शांति से जो बाजार को होता है उसे होना देने का और अपने खुद के डिसीजंस लेने के। राइट। आप में से किसी को भी कोई भी क्वेरी हो, यू कैन रेज योर क्वेरी बिफोर वी स्टॉप। यस, आप कुछ कह रहे थे तरुण जी? ये जो चार्ट के ऊपर जो वॉल्यूम देखते हैं हम नीचे, यस, उसमें रेड बार भी होता है, ग्रीन बार भी होता है सर। यस, रेड बार इज दैट कि वो फॉल के टाइम पे हाई वॉल्यूम आया। नहीं, वो सेलिंग का वहां पे हम समझे कि सेलिंग प्रेशर ज्यादा था, वो सेलिंग के वॉल्यूम ज्यादा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए आप नोट करो तो जब जब शेयर ने गिरा हुआ है, राइट, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, रेड कैंडल्स। तो ये इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, इसको कोई ध्यान में देने की जैसी चीज नहीं है, पर यहाँ पे ध्यान में देने जैसी चीज जो है वो मैं आपको बताता हूँ।
एक मिनट, ध्यान में लेने लायक चीज ये एक ही है। देखो ये आईपीओ का वॉल्यूम मैं छुपा देता हूँ, राइट। अब मुझे बताओ सबसे बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे कब आया हुआ है? ये 2019 से पहले आया सर, ये 2018 यहाँ पे सर, यहाँ, राइट। ये पूरा जोन एसआईपी का जोन धीमे धीमे माल बाय हुआ, रैली को पूरा सपोर्ट मिला है वॉल्यूम का, ये कहता है रैली लंबी चलनी चाहिए, राइट। अब इसको चलने दो, मेन ये देखो छोटा चार्ट है इसका सर, जो कंपनियों के लंबे चार्ट है वहां पे देखो बड़े बड़े वॉल्यूम का बात है, इससे हमें काफी जानकारियां मिलेगी। ये जैसे टीसीएस है, राइट, इनिशियल समय में जबरदस्त वॉल्यूम आए, हाई ग्रोथ, 2008 के फॉल में सबसे बड़ा अब तक का ऐतिहासिक वॉल्यूम इधर आया था फॉल में, राइट। फिर पूरी रैली चलती गई, इतने बड़े वॉल्यूम नहीं थे, राइट। वापस ये फॉल में अच्छे वॉल्यूम आए, तो बड़ा बाइंग हमेशा नीचे के लेवल पे आएगा, डन। बट ये वॉल्यूम जो दिखा रहे हैं सर नीचे, इसमें हाँ, भी बार जो है दो कलर के हैं, ग्रीन और रेड है सर। जो कोई रेड काम के नहीं है सर, अच्छा, उससे कोई मतलब नहीं सर, रेड और कोई ग्रीन कलर मतलब का नहीं, मतलब, समझ गया सर, कोई मतलब नहीं। कैंडल रेड है, आपका वॉल्यूम का बार भी रेड है, पर उससे हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है, समझ गया, राइट। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। वॉल्यूम विल इंडिकेट दैट इट इज बाइंग ओनली। नो नो, वॉल्यूम विल इंडिकेट एक्टिविटी। वॉल्यूम ये इंडिकेट कर रहा है कि बहुत एक्टिविटी हुई यहाँ पे। देखो यहाँ सुस्त माहौल था क्योंकि रैली थी, वो बड़े लोगों को इंटरेस्ट नहीं था लेने में, उन्होंने तो इधर ही माल ले लिया था। यहाँ पे हाई एक्टिविटी थी, राइट। अगेन यहाँ पे हाई एक्टिविटी हो गई है। अब हाई एक्टिविटी में टीसीएस में क्या हुआ होगा? बाइंग। अब यही एक्टिविटी आपको एक घटिया शेयर में देखोगे तो वहां सेलिंग हुआ होगा, यस यस, राइट। तो इट जस्ट इंडिकेट्स एक्टिविटी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, सो चिंतन भाई आज कुछ प्रेजेंटेशन है मेरे ख्याल से, कुछ और नेक्स्ट? यस सर, 9:30 को लाइंड अप है। यस यस, चलिए बहुत अच्छा। हमने अब तक सितंबर बैच में चार्ट्स जो आप लोगों ने सीखे हैं, मेरे ख्याल से दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ चार्ट, राइट। आपको चार्ट में ये नॉलेज होना चाहिए, मैं कहाँ खरीदूं, कहाँ बेचूं, कैसे बाय करूं, यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। थियरी हजारों है, राइट। हजारों थियरी में जाने का कोई जरूर नहीं है। ऑलवेज किस स्ट्रेटेजी पे चलो। किस मतलब कीप इट सिंपल एंड स्वीट। कोई भी चीज जो कॉम्प्लिकेटेड लगती है वो कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए लगती है। जितनी चीजें सिंपल होगी उसको आप इंप्लीमेंट भी कर पाओगे, राइट। नेक्स्ट वीक हम इसमें और थोड़ी डीप डाइव करेंगे। सो सेट अलर्ट, साथ रहिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। हर चीज को प्रैक्टिस चाहिए। द मोर यू डू प्रैक्टिस, द मोर हाई कॉन्फिडेंस यू विल बी। जो जीतने वाले लोग हैं वो इसलिए नहीं है कि वो बहुत होशियार है। जीतने वाले लोग इसलिए जीतते हैं, चैंपियंस इसलिए वो चैंपियंस है क्योंकि जब सबको नींद आ रही होती है तब वो चैंपियंस फील्ड में होता है, प्रैक्टिस कर रहा होता है। लेट अस बी लाइक चैंपियंस। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। जय हिंद। Thank you. थैंक यू, Thank you. Best of luck थैंक यू। to all of you. Thank you.